A very pleasant morning to everyone. Myself Harshita. I know there is no need to tell for what we are representing this video. Yes, this is the auspicious day on which two of the most legendary persons of our country were born. This is the birth anniversary of our father of nation, Dr. Mohandas Karamchand Gandhi, and the second Prime Minister of our country, Dr. Lal Bahadur Shastri ji, as we all are familiar with the efforts which both the freedom fighters, or we can say the social workers, had made and what they had done for our country. So, the students of our class have prepared a small presentation to pay them a tribute. So, without any further ado, let's begin. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत उसमें छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश के प्रति प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Good morning to all. I am Harshita and I am from class 11th. So, first of all, I want to wish you all a very happy Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. So, today I want to speak on a topic which seems really important in today's life and for the future generation as well. That is the relevancy of Gandhi's and Shastri's vision in present scenario. If we talk about the Gandhian philosophy, which taught us about non-violence and truthfulness, we find that it is vanishing from our society day by day. And if we talk about the Shastri's morals and his philosophy, we find that that is also lacking in our surrounding. Shastri's expectation from the youth of India was that they should act as a foundation on which a prosperous India could stand. So, I only want to draw everyone's attention towards the fact that thoughts of an individual have a great role to play in shaping his or her life. That's why the philosophies of the leaders seems to be simple to everyone, but practicing them in real life is really difficult. We all are familiar with the Gandhian philosophy of non-violence and truthfulness, but if we look around us, there is too much violence and people are betraying each other for their benefit. So, we have to follow some of the principles of the leaders to represent a better version of our country and a better version of ourselves in future. Thank you and have a nice day. नमस्कार, मैं कक्षा 11 की छात्रा आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर उनके सम्मान में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। आँखों पर चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पे मुस्कान। आँखों पर चश्मा, हाथों में लाठी और चेहरे पे मुस्कान। दिल में था उनके हिंदुस्तान।
अहिंसा उनका हथियार था, अहिंसा उनका हथियार था, अंग्रेजों पर भारी जिसका वार था, अंग्रेजों पर भारी जिसका वार था। जात पात को भूलकर, जात पात को भूलकर वह जीना सिखाते थे। बड़ों सदा हो जीवन और अच्छे हो विचार, बड़ों को दो सम्मान और छोटों को प्यार। बापू यही सबको बताते थे, बापू यही सबको बताते थे। लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे, लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे। स्वच्छता पर देते थे जोर, स्वच्छता पर वह देते थे जोर। माँ भारती से जुड़ी थी उनकी दिल की डोर, माँ भारती से जुड़ी थी उनकी दिल की डोर। ऐसी शख्सियत को हम कभी ना भूल पाएंगे, ऐसी शख्सियत को हम कभी ना भूल पाएंगे। उनके विचारों को हम सदा अपनाएंगे, उनके विचारों को हम सदा अपनाएंगे। धन्यवाद। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुप्रभात, मेरा नाम शिवानी अण्णा है। मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लाल बहादुर शास्त्री जी। इस माटी का एक लाल, जो कद में तो छोटा था पर उसके हौसले बहुत बड़े थे, जिसने अपने रुतबे की ताकत से नहीं बल्कि अपनी सादगी से लोगों का दिल जीता, जिसके लफ्ज़ों ने जब जब कुछ बोला तब तब लोगों में एक नई क्रांति पैदा हुई, जो ना तो एक किसान था और ना ही कोई सैनिक था। पर इस देश में एक किसान और सैनिक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात जन जन को समझाने और सिखलाने के लिए एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।